جی میں نے واپس سے میٹنگ کو جوائن کیا ہوں. جی جم شروع گیا. جی السلام علیکم. میں نے واپس سے میٹنگ ری جوائن کیا ہوں. جی 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 ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے نا. جی جی شفیق بھائی. ایک منٹ. ہاں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بات ادھوری رہ گئی تھی. وہ یہ تھا کہ جیسے ہم اس سے مطمئن ہیں، لیکن صرف جو مجھے ایک پرابلم نظر آتا ہے کہ اساتذہ کا طلبہ کے ساتھ رابطہ بہت کم ہے. جیسے آپ آئے، آپ نے 40 منٹ پڑھائے اور چلے گئے، ٹھیک ہے. اگر اس کے بعد بچے کو کسی چیز کے بارے میں معلومات کرنا ہے یا کچھ ہے، جیسے میں میرے بیٹے کو کہتا ہوں کہ ایک کام کر، ابھی سر کو فون لگا اور بات کر، تو وہ ڈرتا ہے کہ نہیں سر چلائیں گے، سر بولیں گے. آپ سے تو وہ ایک دم فری ہے، آپ کا اتنا ٹینشن نہیں ہے. جیسے الماس ٹیچر ہے، اگر میں کوئی چیز بولوں گا کہ ابھی تو نے آج یہ سم پورا کیا ہے، مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ سم صحیح ہے یا غلط ہے، یا الجبرا جو تو نے کیا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ایک کام کر، اس کو بھیج مس کو. تو اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ میں مس کو بھیجوں گا تو مس مجھے چلائیں گے، مس بولیں گے کیوں ابھی تم نے یہ بھیجا ہے. تو یہ تھوڑا تعلق مس کے ساتھ بچوں کا ہے نہیں، یا اساتذہ کا بچوں کے ساتھ ہے ہی نہیں. تو اس چیز کو اگر بڑھائیں گے، سامنے سے خود اساتذہ یہ کہیں گے کہ آپ کو جو بھی پرابلم ہے آپ اینی ٹائم آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ اس میں اساتذہ سے طلبہ کا کام ہے کہ وہ وقت مانگے کہ ہم کون سے ٹائم آپ کو جو بھی چیز ہم نے کیے ہیں اگر آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم اس ٹائم پہ پوچھ سکتے ہیں. یہ طلبہ اساتذہ سے ٹائم مانگیں گے. جی دیکھیے ہماری میٹنگ میں الحمدللہ عامر سر ہمارے اسکول کے AHM جو ہے وہ بھی جڑ چکے ہیں. اور جی سر آپ کا ہماری میٹنگ کے اندر یہ دوسری مرتبہ ہم نے جوائن کیے. ماشاءاللہ ہمارے پیرنٹس بہت فکر مند ہیں، بہت ساری رائے کھل کے آ رہی تھی. تو عامر سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر خیریت سر؟ الحمدللہ. میں تو سب سے پہلے تو آپ سبھی والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وعلیکم لوگ آج شکریہ. میٹنگ میں موجود ہیں، اور آج کے دن خاص طور پہ آزادی کا دن ہے. آپ سبھی کو بہت بہت مبارک یوم آپ کو بھی آزادی. یہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا. ابھی میں کافی کلاسز سے ہو کر آ رہا ہوں میٹنگ میں. آج الگ الگ جگہوں پر ہماری کلاس میں جو بچے شامل ہوتے ہیں، روزانہ پڑھائی کرتے ہیں، ان کے والدین سے بات ہم لوگوں نے کوشش کی کہ کریں، لیکن وقت ہمارے پاس کم تھا. 10ویں کی کلاس میں بھی والدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بہت فکر مند ہیں، ان کے مستقبل کے لیے فکر مند ہے. فکر مند رہنا ضروری ہے، کیونکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک میں اگر ہم کو عزت اور وقار کے ساتھ ہم کو زندگی گزارنی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنے بچوں کو باہنر باصلاحیت بنائیں گے، تبھی وہ ایک نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ کو شاید پتا ہوگا کہ ہمارا ماضی بہت شاندار رہا ہے. اس میں شیر میسور ٹیپو سلطان سے لے کر APJ عبد الکلام تک، اگر جتنے بھی مسلم رہنماؤں کا آپ الگ الگ شعبوں میں ان کی کارکردگی دیکھیں گے تو کوئی ایسا میدان نہیں رہا ہے جہاں پر ہم لوگ بحیثیت مسلمان ہم نے اپنے دینی تشخص کے ساتھ، اپنی دینی جو ہے وہ شناخت کے ساتھ میں اپنی مذہبی نمائندگی کرتے ہوئے اس ملک کی خدمت انجام دی ہے. آج بھی کییم ہاسپٹل آپ کو پتہ ہے پریل کے اندر
वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोविड के पेशेंट हैं, और वहाँ पर एक बहुत ही बड़े डॉक्टर जो जिनका अभी अभी वहाँ पर बहैसियत मेडिकल ऑफिसर उनका उस ओहदे पे फायज हुए हैं, उनका नाम है डॉक्टर मोहिउद्दीन सुल्तान, जो बहैसियत एक यंग मुस्लिम डॉक्टर उस हजारों कोविड पेशेंट का वो इलाज कर रहे हैं। वो वहाँ पर हिम्मत के साथ में उन लोगों की खिदमत कर रहे हैं जिनका ताल्लुक किसी भी मजहब से है। वो एक इस मुल्क की शहरी हैं, और अपने इस मुल्क के तई जो उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद है वो अदा कर रहे हैं। और उसी तरह से कई लोगों को हमने देखा इस कोविड के दौर में, जिन्होंने लोगों की राशन देकर मदद की, जिन्होंने लोगों को दवाएं देकर जो है वो मदद की। किसी लोग कुछ लोगों ने जो है वो कुछ और तरह से मदद की। तो मुसीबत के वक्त भी हम लोगों ने काम किया है, और जब हम आम हालात होते हैं उस वक्त भी हम काम कर रहे हैं। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे ये देखिए, आप और हम उसी वक्त एक अच्छा काम अंजाम दे सकेंगे जब हम इस सोसाइटी में, इस समाज में एक अच्छा मकाम हासिल कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे बच्चे खूब कमाएं, खूब पैसा हासिल करें या कोई बहुत बड़े ओहदे पे चले जाए, लेकिन आप देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार क्या था दावत का भी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आम लोगों को भी दावत दिया करते थे, और ख़ास लोगों को टारगेट करके भी दावत का काम किया करते थे, ताकि उनकी दावत पर का असर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पड़े। हमारे पास हमारे ये जो बच्चे हैं, ये अगर अगर अलग अलग मकामात पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ओहदों पर फायज होते हैं, जैसे अभी 42 मुसलमानों ने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को क्रैक किया है, वो आईएएस ऑफिसर बनेंगे, वो इनकम टैक्स कमिश्नर बनेंगे, वो म्युनिसिपल कमिश्नर्स बनेंगे, वो आईपीएस ऑफिसर्स बनेंगे। ये लोग जब इस खास मकाम पर, इस खास ओहदे पर जब फायज होंगे, तो अपने नाम के साथ, अपने दीन के साथ में, अपनी शख्सियत के साथ में लोगों को मुतासिर करेंगे। और ये सभी लोगों के इंटरव्यू आप पढ़िए, ये सभी कहते हैं कि हमारा स्कूल का जो बैकग्राउंड था, हमारी जो बुनियाद थी वो बहुत मजबूत थी। तो किसी भी बच्चे की जो आगे की जो शख्सियत की तामीर होती है वो उसके स्कूल के लेवल से, और ये 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, ये जो 4-5 साल की उम्र है, ये हमारे बच्चों की बहुत कीमती फिल वक्त ये जो वक्त चल रहा है। और हमें पता है कि आप लोग भी अच्छे तरीके से अपने बच्चों की तरबियत का काम का अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जो अभी फिलवक्त हालात चल रहे हैं, हम लोग मजबूर हैं कि बच्चों को ऑनलाइन तरीके से पढ़ाएं, दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। हम लोग 1300 बच्चों को 30 टीचर घर जाकर नहीं पढ़ा सकते हैं, एक जगह पर बुला के नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर हमको मौका मिले तो हम स्कूल में ज़रूर इन बच्चों को बुलाएंगे, और आइंदा हमारा प्लान है कि कम से कम 10वीं के बच्चों को हम लोग पार्टली अभी 25-25 की मतलब ग्रुप के अंदर हम कोशिश करें कि 2 ग्रुप में 10th ए के बच्चों को और 2 ग्रुप में 10th बी के बच्चों को बुलाएंगे, और कोशिश करेंगे कि हम लोग एक टीचर को वहाँ मुतय्यन करें। और वो जैसे अभी मैं सुन रहा था, एक पेरेंट कह रहे थे कि भाई वो बच्चे हमारे डरते हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं टीचर से। तो ये जो जाहिर सी बात है, ऑनलाइन टीचिंग में और जो एक्चुअल टीचिंग होती है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन कोई रास्ता नहीं है, इसके लिए ये रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। दूसरे रास्ते जैसे बनेंगे, जिस तरह से भी दस्तयाब होंगे, हम कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि आप लोग कोऑपरेट करें, आप लोग ताउन करें, और हमारी जो कमियां खामियां हैं आप उसकी तरफ भी निशानदेही करें। हम ये नहीं कहते कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर पा रहे हैं। मैं बहुत सारी हमारे टीचर्स कोशिश कर रहे हैं, हमारा पूरा स्टाफ लगा हुआ है कि बेहतर तरीके से हम बच्चों को की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करें, लेकिन हम जानते हैं और अच्छे तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। हमारे अंदर अभी भी कमियां हैं, कोशिश करेंगे तो हम और अच्छे तरीके से वो सारी कमियों को दूर कर सकते हैं, वो भी काम जारी है। लेकिन अभी फिल वक्त आप लोग अपने एक बच्चे को जो आपके साथ अभी मौजूद है, या आप एक बच्चे की फिक्र करें, तो इंशाल्लाह हमारे पास अगर 22 बच्चे हैं, 23 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, वो एक एक पेरेंट अगर एक एक बच्चे को देख ले, और देखना क्या है कि रोजाना डेली रात में आप इनसे पूछ लें कि बेटा आज 3 घंटे की जो क्लास हुई थी उसमें कौन सा सब्जेक्ट हुआ, क्या कुछ पढ़ाया गया, क्या होमवर्क मिला, और आपने उसको मुकम्मल किया नहीं किया। बस इतना 2-4 सवालात कर लें, तो बच्चे भी जो है इंशाल्लाह ज़रूर वो जो कुछ भी उनकी कमी खामी है वो भी वो दूर कर लेंगी। और हफ्ते में या 15 दिन में मैं कहूँगा आपसे कि हमारे जो क्लास टीचर्स हैं या हमारे जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, अगर बच्चे को डर लगता है तो आप बात कर लें,
और मैं बच्चों से भी कहूँगा कि देखिए बच्चों, आपको किसी भी टीचर से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सभी आपके टीचर्स हैं। हमारा काम, हमारा मकसद यही है कि हम आप पढ़ाई के दौरान आपकी जो भी मतलब पढ़ाई में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, हम उसको सॉल्व करने के लिए, हम आपको मारने के लिए, आपको डाँटने के लिए, आपको जो है वो चिल्लाने के लिए स्कूल में मुतय्यन नहीं किए गए। हमारा काम है कि आप अगर साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपको नहीं कुछ आ रहा है, तो आप हमसे ही पूछेंगे। तो पूछने में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि आप किसी भी मौके पर ना पूछें। अगर हमसे पहले से वक्त ले लें या हम व्हाट्सएप पे आप बात कर लें कि सर हम आपसे बात करना चाहते हैं, या पेरेंट हमारे बात करना चाहते हैं, तो हम ज़रूर हमारे टाइम को एडजस्ट करके आपसे बात करेंगे। तो मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, कदीर सर का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब से कदीर सर को, आपको पता है कि 10th का क्लास टीचर बनाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से सर कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो है वो जुड़े रहें। अल्लाह ताला इनकी सलाहियतों में और भरपूर जो है वो इल्म इनको नवाजे, सलाहियतों में बढ़ोतरी करे। और हमारे बच्चों की के अंदर वो जो खिदमत का, देखिए हमारे कौम में, मैंने कल परसों हम एक आलिम दीन के साथ में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि सर हमारी कौम के अंदर दो चीज़ों की कमी है। एक तो हमारे पास कायद नहीं है, और एक हमारे पास खादिम लोग नहीं। हमारे पास मतलब लीडर्स नहीं है, और ना ही हमारे पास अच्छे फॉलोअर्स है। और हमको हमारे बच्चों को अगर अच्छा लीडर, अच्छा कायद बनाना है, तो पहले उनके अंदर खिदमत का जज्बा पैदा करना पड़ेगा। पहले खादिम होगा तभी वो कायद बनेगा। तो हमारे बच्चों के अंदर सिर्फ पढ़ाई और तालीम और फिजिक्स और केमिस्ट्री की ही फिक्र ना करें, वो एक अच्छे इंसान बने उसके लिए भी थोड़ी सी फिक्र करें। उनको घर का थोड़ा बहुत काम दे, उनको जो है वो पड़ोसियों के कुछ काम दें, उनको अपने बुजुर्गों के लिए कुछ काम करने का मौका दें, कुछ सोशल वर्क, सामाजिक काम करने के लिए थोड़ा बहुत उनको इन्वॉल्व करें। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से, लेकिन देखिए 14 साल 15 साल के बच्चे बहुत कुछ थोड़ा बहुत खिदमत का काम भी अंजाम दे सकते हैं। वो चाहे हमारा पड़ोसी गैर मुस्लिम हो, चाहे मुसलमान हो, ये हमको नहीं देखना है, बल्कि हमको खिदमत के लिए उनको तैयार करना है। और हमने देखा है कि जोगेश्वरी ईस्ट के अंदर कई हमारे भाइयों ने, जो मुसलमान भाई थे, उन्होंने गैर मुस्लिमों की भी बड़े तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से खिदमत अंजाम दी है। तो हमारे मुल्क में देखिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अलग हो जाएं, हम लोग बढ़ जाएं, लेकिन ये कोशिशें तो समझ लीजिए अलग अलग जगहों पर हो रही है, लेकिन समाजी मैदान में अगर हम लोग एक साथ में रहेंगे, एक दूसरे के साथ में रहेंगे, तो ये जो खलश है, ये जो रंजिश है, ये मेरे ख्याल से दूर हो सकती है। तो थोड़ा सा मैं यही कहना चाहूँगा कि एक अच्छे इंसान हमारे बच्चे कैसे बने, समाज में अच्छा काम कैसे करें, उसके लिए भी फिक्र करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। शुक्रिया आमिर सर, आपने हमारी इस मीटिंग को अटेंड करके हमारी मीटिंग की रौनक को और बढ़ा दिया। बहुत बेहतरीन राय आमिर सर ने मुख्तसर वक्त में, बहुत जामे अंदाज में सारे जो पॉइंट थे, सारे पॉइंट को सर ने मतलब बोलिए ना, समंदर को पूजे में सबोना। ठीक है, मैं उन्हीं का मुंतजिर भी था। तो और बेहतर कोई और आपकी राय, और भी सर को भी दूसरी स्कूलों में भी, शायद दूसरी क्लासों में भी जाना है जी। और 2 मरतबा आपने मीटिंग ज्वाइन की है आप लोगों के लिए ही। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको फिर बतला दूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे असातिज़ा जो है वो हमेशा हर वक्त आपके साथ है। आप किसी भी वक्त फ़ोन कर सकते हैं। असल में लेडीज़ टीचर होते हैं तो थोड़ा उनका मसाइल होते हैं कि वक्त देखकर हम उनको फ़ोन करें, या जैसा सर ने बताया कि हम पहले से उनके औकात ले लें। वरना जेंट्स टीचर और मैं तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह, आप रात की रात को मुझे फ़ोन करो, इंशाल्लाह मैं हर मुमकिन तरीके से आपके साथ हूँ, आपके तलबा के साथ हूँ। बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह जो पिछले साल तालीम एतबार से बहुत कमज़ोर थे, अभी बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। ठीक है, माशाल्लाह। अमान है, मुबीन है, और रफ़ीक है, माशाल्लाह। और भी बहुत सारे बच्चे, ज़ीशान अपना ज़ीशान है, शाहनवाज़ कुरैशी है। ये ऐसे बच्चे थे जो 9th में थोड़े से मतलब ठीक एवरेज बच्चे थे, लेकिन 10वीं आने के बाद में माशाल्लाह ये बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं। और जो अच्छे बच्चे थे, वो फ़िक्रमंद बच्चे थे, वो थोड़ा सा अभी देखिए आज भी वो मीटिंग से गैर हाज़िर है, जिन पर हमको तकिया था। तो बच्चे फ़िक्र लेते हैं माशाल्लाह, आप लोगों को भी इसका बहुत अहम रोल अदा करते हैं। मुबीन के वालिद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर बाकी आपके जो चल रहा है पढ़ाई अच्छी चल रही है इंशाल्लाह।
मुबीन भी अच्छा ही आपकी तारीफ माशाल्लाह बहुत करता है सर, हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हमारी जो कर रहे हैं सर, तो हिसाब से सर जो है बाकी तो अच्छा ही है, मुबीन भी आपकी तारीफ बहुत करता है, तो वजह से सर आप बस थोड़ा ध्यान रखिए मुबीन का। जी जरूर। थोड़ा मौलाना जी, मौलाना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना अतीकुल्लाह के वालिद हमारे आलिम साहब, एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान जुड़ चुकी है। जी वालेकुम सलाम। आइए ना मौलाना, कैमरा ऑन करिए आप अपना। असल में मौलाना का नेटवर्क का मसला है, वो वतन में है, इसी वजह से उनका लड़का जो है वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है, अतीकुल्लाह। ठीक है, और कोई? अल्लाह का है जी जी से आप बच्चों को जो है तालीम दे रहे हैं, बहुत अच्छा और बहुत कारामत साथ बोलना, बच्चे जो है तालीम से जुड़े हुए हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ घर पर बैठाता हूँ और जो है उनको काफी कलम दे करके जो अपना की रहनुमाई होती है उसके मुताबिक अल्लाह ताला का सजद दुआ है कि बीमार का खात्मा हो और सजद वासी हो, आमीन आमीन। तालीमी माहौल शुरू हो जाए, कि अंदर कोशिश अल्लाह ताला कबूल फरमाए और लिहाज से नवाले, बहुत अच्छा रहेगा। जी, अमान आप कुछ बोलेंगे? आपके पेरेंट्स, आपके भाई है गालिबन। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या बेटा, कैसे हो? जी और कुछ राय? ऑनलाइन सर, ऑनलाइन एग्जाम होगा ना, तो उसकी डेट क्या है, मतलब क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल बेटा, अभी आज हम लोग बस आपकी मीटिंग खत्म होने के बाद हम सारे टीचर्स की मीटिंग है स्कूल की, और उसमें सबकी राय आएंगी कि क्या पेरेंट्स की क्या राय आई है पूरी क्लास के एतबार से, और इंशाल्लाह जल्दी ही उसकी एक तारीख मुतय्यन करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इतला कर दी जाएगी इंशाल्लाह। यानी कम से कम ठीक है एक हफ्ता पहले सर। जो है इतला कर देंगे इंशाल्लाह, जो भी रहेगा, जैसा एग्जाम होगा, किस नोयत का रहेगा और एग्जाम का शेड्यूल क्या रहेगा, और अक्ल इम्कान कोशिश ये करेंगे एक दिन में एक ही पेपर रहे। सर पेपर पैटर्न मिल सकते हैं? पेपर पैटर्न अब तो ये एमसीक्यू टाइप हो सकता है, अब कैसा किस नोयत का होगा आज की मीटिंग के बाद में इंशाल्लाह मैं ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा कि क्या राय आई आज की मीटिंग में या क्या तय हुआ। जी जज़ाकल्लाह सर। जी जी। अच्छा, जीशान के वालिद कुछ कहना चाह रहे हैं? वालिद वालिदा कौन है? सर मेरे घर में कोई भी नहीं अभी। चलिए कोई बात नहीं। हाँ सोहेल, आप कुछ कहना चाहेंगे? और नहीं, बस जज़ाकुमुल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मेहनत अल्लाह पाक कबूल फरमावे, और आमिर सर और सबको मुबारकबाद, आपने माशाल्लाह बहुत मेहनत की, बहुत अल्लाह पाक इस कुर्बानी को कबूल फरमावे, और आप जो मेहनत कर रहे हैं बहुत दिली खुशी हो रही है। जज़ाकुमुल्लाह। और किसी को कुछ अगर कहना है तो ठीक है, वरना फिर माशाल्लाह हमारी जो मीटिंग थी तो 40 मिनट की थी, लेकिन मैंने इसको आपकी फिक्रों पर थोड़ा एक्सटेंड किया और दूसरी लिंक भेजकर। और इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं पेरेंट्स को कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो भी रिकॉर्डिंग करता हूं इसकी, अपने जो भी लेक्चर होते हैं, जो असबाक होते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करता हूं, उसको फ़ौरन यूट्यूब पर मेरा जो चैनल है उस पर डाल देता हूं, ताकि वो बच्चे जो ऑनलाइन तालीम में जुड़े नहीं हैं, जीशान बेटा माइक पर, जो ऑनलाइन तालीम में जुड़े नहीं हैं किसी वजह से, तो वो बाद में यूट्यूब चैनल पर मेरे देखकर वो अपने आगे की तालीम को जारी कर लें। ये मकसद मेरा होता है। तो ऐसे अगर आपका कुछ मसला है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर भी मेरे वो इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं वहाँ से भी। आज की इंशाल्लाह ये मीटिंग पे मैं यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा ताकि लोगों को भी तरकीब मिले इंशाल्लाह इसकी। और मैंने आज एक असाइनमेंट दिया हूँ, वो एक असाइनमेंट दिया हूँ, इंशाल्लाह उसको भी आप फिल कर लीजिए, सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा इंशाल्लाह मेरी तरफ से। जी शफीक भाई कुछ बोल रहे हैं आप? जी, एक तो सबसे पहले आपके लिए बहुत बहुत जज़ाकल्लाह कि आपने ऐसे वक्त में बच्चों के दिन खराब करने से अच्छे उनको संवारने की कोशिश की। दूसरा ये कि इस माहौल में भी आप जितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए फिक्रमंद होके, वरना तो ये आसान तरीका था कि भाई सब चीज़ें बंद है हम भी बंद हो जाते हैं,
लेकिन जितनी भी आप इस चीज के लिए फिक्रमंद है, चाहे जिस हिसाब से भी, चाहे अगर उसमें हम लोगों को तकलीफ हो रही हो या दूसरों को तकलीफ हो रही है, तो वो जो भी है, लेकिन वक्त बच्चों का खराब नहीं हो रहा है। इस वजह से हमको काफी खुशी है कि आप उसके लिए सुबह के वक्त में अपने सारे काम काज मतलब बंद करके, बच्चों के पास तो कोई काम नहीं है, अगर आपने उनको पढ़ाए या ना पढ़ाए वो अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन आप फिक्रमंद होके सुबह की जो भी, जैसे मैं अक्सर मोबाइल देखता हूँ कि शाम के वक्त आप लोग लिंक भेज देते हैं कि कल इतने बजे मीटिंग होगी। अभी जो जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं ये उनका प्रॉब्लम है, तो जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते ये उनका प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग फिक्रमंद होके जो सुबह के वक्त में, रात के, शाम के वक्त में जो भी लिंक भेज देते हैं जूम मीटिंग की, ये आपकी फिक्रमंदी है। और जो बच्चों का वक्त नहीं खराब कर रहे, ये भी आपकी फिक्रमंदी है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत जज़ाकल्लाह कहता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया जज़ाकल्लाह। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से जो हमको एक पीरियड दिया गया था, वो जो रोजाना की तालीम हमारी हो रही है उससे बहुत मुख्तसर है। मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने बहुत कम मतलब हफ्ते में जो है मुख्तसर वक्त के लिए ही ऑनलाइन तालीम के लिए कहा है, लेकिन हम लोग अपने तौर से जायद बढ़ा रहे हैं इसको। दूसरी स्कूलों में जो है वो आप लोग देख रहे हो, शायद अतराफ की स्कूलों में वक्त इतना नहीं है जितना वक्त अपना है। माशाल्लाह यहाँ 5वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों को लोग 40-40 मिनट के 3 पीरियड रोजाना हो रहे हैं। ठीक है इंशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह, आप जैसे ये पेरेंट्स से ही हमको कुव्वत और तक़वियत मिलती है, और आपका जोश और जज्बा ही हमारे अंदर एक नई उमंग और तरंग पैदा करता है। हम मशकूर और ममनून है आपके कि आप हमारे ताल्लुक से इतनी बेहतरीन राय रखते हैं। जी बेटा अमान। सर जी ये जो यूट्यूब की जो आपने जो बोला ना लिंक विद नजरा, जी ये यूट्यूब की जो लिंक है वो भेज देना सेंड कर। जी मैं भेज दूंगा। मेरा नाम है काजी कदीर, तो उसी नाम पर अगर क्लिक करेंगे मैं भेज देता हूँ इंशाल्लाह। अमान कुछ कह रहे थे, अमान के भाई। हाँ सर वही पूछ रहा था, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है आपके? काजी कदीर है, QUAZI और QUADI। मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा ताकि जो बच्चों के लेक्चर मिस हुए हैं तो वो वहां से फिर इस्तेफादा हासिल कर ले। ठीक है जज़ाकल्लाह। और कोई? चलिए फिर हम लोग आप भी आज मसरूफ औकात में से हमारे लिए वक्त निकाला, तो हम आपके मशकूर और ममनून। अब बस आप घर में रहे और सेफ रहे, अपने बच्चों की निगरानी करते रहे, आमाल की पाबंदी करते रहे, और जैसा सर ने कहा कि खिदमत खल का जज्बा हमारे कौम के अंदर परवान। माइक थोड़ा बंद कर दे, अतराफ की माइक बंद कर दी मौलाना सोल्तान साहब जी। तो मैं यही कहता हूँ कि बस घर में रहे, सेफ रहे, और अपनी दुआओं के अंदर ख़ास तौर से ये जो वबा है, ये बीमारी है, या आफत है, या और भी कोई भी नाम इसको दे दे, अल्लाह जल्दी से जल्दी इसका खात्मा करे और हमारी ज़िंदगी की गाड़ी फिर अपनी रफ्तार पर रवा दवा हो जाए। इससे हम अल्लाह से दुआ करते हैं हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवरे, और हम अपने बच्चों की निगहदाश्त, उनकी तालीम, तरबियत, जिस्मानी, ज़हनी, हर किस्म की नौशो-नमा हम लोग फ़िक्रमंदी के साथ करें। और उसके लिए हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। हमारा पूरा स्कूल, हमारा पूरा स्टाफ बच्चे के तालीम को सजाने में, संवारने में आपके शाना बशाना हम लोग खड़े हैं। हमारी ताउन, हमारी मदद आपके साथ हमेशा रहेगी। इस यकीन के साथ फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह इस वबाई मुर्र से सब की हिफाजत फरमाए। ठीक है, चले दुआ पढ़ लेते। मौलाना सोहेल दुआ पढ़ा दीजिए मुख्तसर तौर पे मजलिस के खात्मे की, ताकि इसका कुफारा अदा हो। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।